Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to lecture number 30. Today we are going to start our new chapter, chapter number 7, and it is about vectors. Today's topic is beta vectors in plane. Means आपका जो कार्टेशियन प्लेन होता है एक्स वाई प्लेन होता है उसमें हम वेक्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं and today's learning outcomes are you will be able to define a scalar and a vector quantity, and you will be able to give geometrical representation of a vector, and you will be able to define unit vector and magnitude of a vector, and you will be able to represent a vector in a Cartesian plane by defining fundamental units vectors small I and j, and you will be able to define negative of a vector. So these are the learning outcomes. So we will start today's lecture. So first of all, the question is, how can you differentiate between vectors and scalar quantities? तो जैसा कि बेटा आपने फिजिक्स में इनको वेक्टर स्केल के बारे में पढ़ा हुआ है, और आई होप सो कि आपको इनके बारे में डिफरेंस मालूम होगा कि क्या डिफरेंस है मेन. So this is the difference. Basically, the vector quantities, the scalar quantities, is a quantity that is only magnitude, that can easily be expressed by only magnitude. जिनको आप सिर्फ magnitude से express कर सकें, so such quantities are called scalar quantity, while vector quantities are those quantity that has both magnitude and direction. So for the expression of vector quantity, you need magnitude along with your direction. So these are some example of scalar quantities: length, area, volume, speed, mass, density. So they don't need direction. They only require magnitude for their representation, while these are the vector quantities: displacement, velocity, acceleration, momentum, force, electrical field, magnetic field. They need magnitude along direction for their representation. So there is a mainly difference between vectors and scalar quantities. Now we will move forward. This is again some examples are there along with some units. So you can see this, these are scalar quantities. Scalars have only magnitude but no direction. For example, mass, length, temperature, these are the common examples of scalar quantities, and these are the vector quantities. For example, velocity and displacement. So these are the examples of scalar and vector quantities. And there are some laws there: triangle law of vector addition and parallelogram of law of vector addition. We will discuss these laws later on. Okay, so now we will discuss geometric interpretation of a vector. आप एक वेक्टर को ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? Now we can see ज्योमेट्रिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ डायरेक्टेड लाइन. मींस आप एक लाइन के जरिए उसको शो करते हैं विद ए इट्स इनिशियल पोजीशन, मतलब कि जो पॉइंट इनिशियल होता है उसको आप ए से, फॉर एग्जांपल अगर ए बी वेक्टर है तो ए का मतलब है कि वो इनिशियल पॉइंट है आपके पास जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड बी इज टर्मिनल पॉइंट, और जहाँ पे वो एंड हो रहा है वो बी उसका टर्मिनल पॉइंट है. ठीक है, और आप इसके ऊपर एक एरो हेड लगाते हैं जहाँ पे वो टर्मिनल पॉइंट पे जहाँ पे एंड हो रहा होता है. इट इज ऑफन फाउंड कन्वीनियंट टू डोनेट अ वेक्टर बाय एन एरो एंड इट्स रिटन either as a b or a bold face symbol like V or underline V. So you can write a vector, आप उसको डोनेट कर सकते हैं एक ए बी के जरिए. अगर वेक्टर ए बी है उसके ऊपर एरो हेड लगा दें, या फिर आप एक बोल्ड लेटर वी के जरिए भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर आप एक वेक्टर वी और साथ उसको अंडरलाइन कर दें. सो दीज आर ऑल द रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर. लेकिन आप किसी को भी किसी भी तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दे आर थ्री मेथड डिस्कस हियर कि आप उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. यहाँ देखें आपके पास ये वेक्टर है, आपके पास दिस इज अ स्ट्रेट लाइन आपको, और साथ में यहाँ पे एरो हेड है. मींस ये डायरेक्शन शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में ये वेक्टर है. दिस इज योर इनिशियल पॉइंट ए एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट बी. और बेसिकली इसको आप ए बी और साथ में एरो के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और प्लस वी ये बोल्ड लेटर के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दे आर बोथ अ मेथड टू रिप्रेजेंट. और ये वेक्टर जो है बेसिकली जब आप इसको एक प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो बेसिकली क्या होता है, इसके दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं. दिस इज स्मॉल a1 एंड स्मॉल a2. स्मॉल a1 क्या है? दिस इज द लेंथ और द मैग्नीट्यूड अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि कितना ऐसा डिस्टेंस है अलोंग एक्स एक्सिस जो है कवर किया है, वो स्मॉल a1 रिप्रेजेंट करता है फर्स्ट वैल्यू, और सेकंड वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है? डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस के. इस वेक्टर ने परपेंडिकुलरली अलोंग y एक्सिस कितना डिस्टेंस कवर किया. तो a2 बेसिकली योर परपेंडिकुलर डिस्टेंस और डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस. सो बेसिकली जो भी वेक्टर होता है उसके आपके पास कोऑर्डिनेट होते हैं जिसमें आपके पास x की वैल्यू भी होती है और y की वैल्यू भी होती है. So this is a geometrical representation of a vector.
Now this is a vector and the starting point or we can say its tail, जो हमारा start point होता है उसको हम tail भी कहते हैं बेटा. This is your tail and this is your head, the terminal point. ओके और आपके पास एरो डायरेक्शन जो होती है उसकी डायरेक्शन शो कर रही है, इस डायरेक्शन में आपके पास वेक्टर है और जो ये लेंथ है आपके पास यहाँ से लेके जो स्टार्टिंग पॉइंट और जहाँ पे एंड पॉइंट है, ये जो टोटल डिस्टेंस है, फासला जो है आपके पास, ये इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है. ओके सो मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर अलर्ट करें आपके पास ये, अगर इसकी वैल्यू अगर 6 है आपके पास और यहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट 2 है, तो इसका मतलब है ये दोनों का दरमियान में डिफरेंस कितना है, 6 - 2 मीन्स 4. तो इसका मतलब 4 जो है इसका मैग्नीट्यूड है. अगर आप अलॉन्ग एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग एक्स एक्सिस मूव कर रहे हैं, अलॉन्ग वाई एक्सिस मूव कर रहे हैं, तो उसमें सिर्फ एक ही वैल्यू होती है, आपको पता दूसरी वैल्यू 0 होती है. तो इन सच वे यू कैन कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड. आप किस तरह मालूम कर सकते हैं. सो यहाँ पे अब कंपेयर कर रहे हैं कि दो वेक्टर्स को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं और दो वेक्टर कब इक्वल होते हैं. यू कैन सी कि आपके पास ये ए और बी दो वेक्टर्स हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि दोनों की डायरेक्शन सेम है बट दे हैव नॉट द मैग्नीट्यूड आर नॉट सेम, मतलब कि मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट है. सो वी कैन से ए इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर. इन एग्जांपल नंबर 2 यू सी ए और बी की जो मैग्नीट्यूड है वो तकरीबन एक जैसे हैं, मतलब कि ए और बी का मैग्नीट्यूड सेम है बट the direction are not same. A is direction में और B is direction में, so you A is not equal to B vector. In third example, you can see A and B both have same magnitude and same direction. So in this way, you can say the two vectors are equal. So how do we, in this slide we compare two vectors कि अगर vectors कब equal होंगे और कब equal नहीं होंगे. जी अब बहुत इंपॉर्टेंट हम डेफिनेशन देखने जा रहे हैं. मैग्नीट्यूड हम कैसे मालूम करते हैं किसी भी वेक्टर का. सो यू कैन से दैट मैग्नीट्यूड और लेंथ, उसको आप लेंथ भी कहते हैं मैग्नीट्यूड को, जो आपके पास डिस्टेंस होता है, और नॉर्म ऑफ अ वेक्टर, इसको हम नॉर्म भी कहते हैं. कोई भी वेक्टर ए बी है उसका जो मैग्नीट्यूड है, ये नॉर्म है, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं कि अगर आप इस एब्सोल्यूट वैल्यू एंड रिटर्न एज, मतलब कि अगर आप इसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले लें, मीन्स अगर आप इसकी जो है एक्स और वाई कंपोनेंट को का स्केयर करके उसको ऐड करके उसका स्केयर रूट ले लें, देन यू कैन से दिस इज योर एब्सोल्यूट वैल्यू, दिस इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड. और यू कैन से सिंपली ए बी, और इसको हम वेक्टर के साथ ये दो साइन जिस तरह डिटर्मिनेंट का साइन लगाते हैं, सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड मीन्स अ पॉजिटिव वैल्यू. कभी भी आपके पास ये नेगेटिव वैल्यू नहीं आती. दिस इज योर पॉजिटिव वैल्यू मीन्स आपके पास एग्जांपल ये देखें, आपके पास एक वेक्टर है ए, उसका मैग्नीट्यूड लेना, तो उसका मतलब है आपने क्या किया, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेनी है. उसका मतलब है ये बार शो कर रहा है कि इसका मैग्नीट्यूड ले रहे हैं आप. तो हमें पता है कि इस वेक्टर के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट. दिस इज वाई कंपोनेंट, दिस इज एक्स कंपोनेंट. तो यहाँ पे जो ए की वैल्यू होती है इन टर्म्स ऑफ एक्स और वाई होती है. फॉर एग्जांपल ये एक्स कोऑर्डिनेट है और वाई कोऑर्डिनेट है, तो आप दोनों कोऑर्डिनेट्स को स्केयर करें, एक्स कंपोनेंट को भी स्केयर करें, वाई कंपोनेंट को भी, उन दोनों को ऐड करें, उसका स्केयर रूट ले लें. दिस विल गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर. मींस कि एक्स कोऑर्डिनेट उसका कितना डिस्टेंस है और वाई कोऑर्डिनेट, उन दोनों का आपने स्केयर करना है और उसका स्केयर रूट लेना है. और आपको बताया कि स्केयर रूट हमेशा आपको क्या देता है, आपको दिस गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू हमेशा. तो मैग्नीट्यूड जो होती है आपके पास एब्सोल्यूट वैल्यू होती है और एब्सोल्यूट वैल्यू मींस आपको हमेशा पॉजिटिव आंसर मिलता है. सो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर. अगर आपके पास वेक्टर्स टू डिमेंशन है, मतलब कि सिर्फ एक्स और वाई प्लेन में, देन x component square plus y component square, and by adding and taking square root you will get the magnitude. If the vector is three dimension means आपके पास थ्री डिमेंशन, एक x आपके पास डायरेक्शन है, एक y है और एक z है, तीन डायरेक्शन है. देन तीनों डायरेक्शन के कंपोनेंट्स को ऐड करेंगे, स्केयर करेंगे और ऐड करेंगे और उसका स्केयर रूट लेंगे. इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इन 3D, जब आपके पास तीन डिमेंशन में आपके पास वेक्टर गिवन होगा. सो इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे उसका मैग्नीट्यूड. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए कि मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है. नाउ यूनिट वेक्टर हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, ठीक है, और हाउ दे कैन यूज और कैसे उसको फाइंड करते हैं आप यूनिट वेक्टर को. बेसिकली यूनिट वेक्टर क्या होता है बेटा, यूनिट वेक्टर इज डिफाइंड एज अ वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो. मतलब कि यहाँ पे आपके पास यूनिट से क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है कि यूनिट का मतलब होता है 1, ठीक है. तो ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको आप यूनिट वेक्टर कहते हैं. और उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अगर कोई वेक्टर हो और उसके ऊपर आप हैट ये कैप डाल दें, दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, मतलब कि इसकी रिप्रेजेंटेशन है. और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी आपने वेक्टर का यूनिट वेक्टर मालूम करना हो तो उस वेक्टर को अगर उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर दें, सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर. मींस कोई भी वेक्टर आपको गिवन है तो आप उसका मैग्नीट्यूड मालूम करें और उस वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें. सो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द unit vector in the direction of that vector. Okay, so unit vector is a vector with magnitude 1
टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर u, अगर आपने मालूम करना है कोई वेक्टर u आपने इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v, एक वेक्टर v है उसका आपने यूनिट वेक्टर मालूम करना है सेम डायरेक्शन के अंदर, तो आप क्या करते हैं, वी डिवाइड द वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब अगर वेक्टर आपके पास v है, अगर ये वेक्टर v है तो अगर हम उसके इसको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, मतलब कि ये जो आपके पास नजर आ रहा है ये डबल लाइंस, ये नॉर्म का साइन होता है बेटा, इसका मतलब ही मैग्नीट्यूड होता है। ये आप हाई क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन आप नॉर्मली इसको एक सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये आपके पास मैग्नीट्यूड है। आपने अगर किसी वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया है तो आपको क्या मिलता है, उसका यूनिट वेक्टर मिल जाता है। तो दिस इज द फार्मूला टू कैलकुलेट द यूनिट वेक्टर। और यहाँ पे समझाया गया कि बेसिकली मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, तो हम लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास दो कंपोनेंट्स हैं उसके ए और बी मीन ए मीन एक्स कंपोनेंट, बी मीन वाई कंपोनेंट, दोनों को स्केयर लें, उसको ऐड करें, उसका स्केयर रूट लें, सो दिस इज योर बेसिकली मैग्नीट्यूड। और मैग्नीट्यूड को आप इस तरह भी समझ सकते हैं, बेसिकली अगर ये आपके पास एक वेक्टर है, आपके पास लेट करो ए वेक्टर है और इसका ये आपके पास क्या है, ये एक्स कंपोनेंट और ये वाई कंपोनेंट है, तो यू कैन रिमेंबर द पाइथागोरस थ्योरम कि आपके पास ये क्या चीज़ है, एक शो कर रहा है आपके पास हाइपोटेन्यूज को, तो हाइपोटेन्यूज कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपके पास हाइपोटेन्यूज का स्केयर इज इक्वल टू बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। सो हाइपोटेन्यूज मालूम करना है तो आप स्केयर रूट ले लेंगे बेस स्केयर प्लस परपेंडिकुलर स्केयर। तो दिस इज बेसिकली यू कैन रिमेंबर दिस बाय पैथागोरस थ्योरम आल्सो, कि पैथागोरस थ्योरम ही बेसिकली आपके पास जो हम इसको मालूम करते हैं, आपके पास किसी की मैग्नीट्यूड मालूम करते हैं वेक्टर का, वो वही चीज़ है बेसिकली। जी, अब हम देख रहे हैं कि अगर हमारे पास जीरो वेक्टर कब होता है या नल वेक्टर कब होता है, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड जीरो हो सके वेक्टर इज कॉल्ड अ नल वेक्टर। मींस इसमें अगर आपको समझना चाहें कि अगर आपके पास एक वेक्टर है उसका एंड और टर्मिनल पॉइंट सेम हो जाए, मतलब कि इनिशियल पॉइंट भी सेम और टर्मिनल पॉइंट भी सेम, मतलब कि वो स्टार्ट होते ही खत्म हो गया, सच अ वेक्टर इज कॉल्ड अ जीरो और नल वेक्टर, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो। यू कैन से दिस इज ये वेक्टर ए है, मींस इसके इनिशियल पॉइंट भी आपके पास और आपके पास एक टर्मिनल पॉइंट भी, बट दिस इज योर नल वेक्टर, जीरो वेक्टर मींस स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है और टर्मिनल पॉइंट भी सेम है, तो दिस इज यू कैन रिप्रेजेंट दिस बाय जीरो और इट्स मैग्नीट्यूड इज जीरो। And when you say the vectors are negative of either, मतलब अगर पास नेगेटिव कब होगा, two vectors are said to be negative of each other if have same magnitude but opposite direction। मतलब आपके पास अगर एक वेक्टर है a है तो आपके पास लेट करेंगे आपके पास फॉर एग्जांपल a b एक वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन ये है, तो नेगेटिव क्या होगा कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाए लेकिन सेम मैग्नीट्यूड हो, मतलब माइनस a ऑफ b रिप्रेजेंटिंग योर नेगेटिव ऑफ वेक्टर मींस इट्स हैव सेम मैग्नीट्यूड, मतलब कोई भी मैग्नीट्यूड है इसका, फॉर एग्जांपल इसकी मैग्नीट्यूड अगर 2 है तो आपके पास जो -2 होता है रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि मैग्नीट्यूड सेम है बट माइनस रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑपोजिट, मतलब अगर ये आपके पास इस डायरेक्शन में है तो माइनस ऑफ ए जो आपके पास इस डायरेक्शन में आएगा। सो नेगेटिव वेक्टर इस तरह होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सो दिस इज योर ए बी इज इक्वल टू, अगर आपके पास एक वेक्टर v के बराबर है देन बी ए इज इक्वल टू माइनस ए ऑफ बी मींस दे आर ऑपोजिट ईच अदर मींस माइनस ऑफ v। और यू कैन से अगर आप ए बी का मैग्नीट्यूड लें और बी ए का मैग्नीट्यूड सेम हो गया, बिकॉज आपको पता है कि अगर मॉड के अंदर कोई वैल्यू आपके पास माइनस की आई तब भी आपके पास आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आंसर आता है। तो जब आपके पास दो नेगेटिव वेक्टर होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड सेम होता है बट ओनली उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। इसमें आप देख सकते हैं एक वेक्टर आपके पास ए है तो एक माइनस ऑफ ए का मतलब है कि सेम मैग्नीट्यूड है बट उसकी डायरेक्शन जो है उसके ऑपोजिट है। जिस स्लाइड में हम देख रहे हैं कि अगर आप किसी वेक्टर को किसी एक स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस आपके पास एक वेक्टर है, कोई भी वेक्टर अगर उसको आप k से मल्टीप्लाई करते हैं और अगर k पॉजिटिव है इट मींस के जो आपके पास वेक्टर हासिल होगा उसकी डायरेक्शन सेम होगी लेकिन उसके मैग्नीट्यूड में उस उतने टाइम्स इजाफा हो जाएगा। मींस अगर आपके पास 2 मैग्नीट्यूड है उसका तो अगर आप उसको 2 पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करें तो उसकी वैल्यू 4 हो जाएगी और डायरेक्शन पे असर नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन सेम होगी। अगर आपके पास डायरेक्शन इस तरह है तो उसका मैग्नीट्यूड डबल होकर इस तरह ये 4 हो जाएगा। ओके, और अगर आप उसको k से नंबर से मल्टीप्लाई करें और k नेगेटिव है तब क्या होगा आपके पास, तब उसकी डायरेक्शन जो है वो भी चेंज होगी। अगर नेगेटिव नंबर है मींस अगर वो इस डायरेक्शन के अंदर है और अगर आपने इसको -2 से मल्टीप्लाई किया तो उसका मैग्नीट्यूड तो मतलब कि -2 टाइम्स होगा लेकिन -2 का मतलब इसकी डायरेक्शन जो अपोजिट हो जाएगी। तो यहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई करने में यहाँ पे आपको चीज़ एक जो होनी चाहिए अंडरस्टैंडिंग आपको कि जब k एक आपके पास नंबर पॉजिटिव है तो उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी जो ओरिजिनल वेक्टर है, बट अगर k नेगेटिव होगा तो जो आपके पास नया वेक्टर हासिल होगा वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हासिल होगा। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर ए बी आपके पास है तो अगर आपके पास ये सी डी है, ठीक है, अगर मैं इसको
किसी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ और पॉजिटिव नंबर, तो ए बी का डायरेक्शन इस तरह ही रहेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो बेसिकली इसकी मैग्नीट्यूड में तो चेंज आएगा लेकिन इसकी डायरेक्शन भी चेंज आएगा। ओके, सो दिस इज टू मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय स्केलर क्वांटिटी। और इक्वल वेक्टर्स कब होते हैं? when a and b are said to be equal if they have same magnitude and same direction। ये हमने लास्ट डिस्कस भी किया एक स्लाइड के अंदर कि हम लोग कंपेयर कर रहे थे कि अगर दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, then we say that two vectors are equal vectors। और पैरेलल वेक्टर्स कब होते हैं? टू वेक्टर्स आर पैरेलल। के पैरेलल क्या मतलब मींस उनके दरमियान सेम डिस्टेंस है, मतलब कि जहां भी आप उनके दरमियान गैप ले लें दोनों के दरमियान डिस्टेंस सेम है हर पॉइंट के ऊपर। सो व्हेन दे आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ दे आर नॉन जीरो स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर। मतलब कि अगर आप एक वेक्टर ए है, आपके पास ए भी वेक्टर है, अगर आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करें इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स ज्यादा हो जाएगा। तो ये दोनों पैरेलल है बट दे हैव नॉट सेम मैग्नीट्यूड। मतलब कि जब आप इसको आप एक ऐसे के से मल्टीप्लाई करें, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो नॉन जीरो हो, मीन्स किसी भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करें तो इसके मैग्नीट्यूड में तो इजाफा होगा या कमी होगी बट उसकी डायरेक्शन में चेंज नहीं आएगी। सो दे आर सेड टू बी अ पैरेलल वेक्टर्स जब आपके पास स्केलर मल्टीपल जो है वो पॉजिटिव होगा। सो व्हेन वेक्टर्स हैव different magnitude but same direction they are said to be a parallel vectors। okay beta, this is very important slide। vectors in a plane मीन्स वेक्टर्स इन प्लेन हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास एक एक्स वाई प्लेन है तो इसमें अगर एक वेक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं, लेट करें ये पॉइंट एक पी है और ये वेक्टर आपके पास यू वेक्टर है, तो ये जो पॉइंट पी रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें दो वैल्यूज रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स और वाई की। मीन्स एक्स और एक्स अलोंग द डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब कि यहाँ कितना फासला इसने तय किया एक्स के एक्सिस के अलोंग, और ये आपके पास डिस्टेंस एक्स है, और ये कितना फासला अलोंग वाई के अलोंग वाई एक्सिस इसने ट्रेवल किया है, तो ये बेसिकली y है। so these basically a point representing two values, one is the x axis distance and second is y axis distance। okay, so आप जो भी आपके पास एक पॉइंट xy प्लेन में होता है उसके बेसिकली दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, so you can say xy। और वी डिफाइन एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मींस आपके पास ये प्लेन आपके पास है, आर स्क्वायर मींस कि आप एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन मींस जो आपके पास कार्टेशियन प्लेन है उसकी बात कर रहे हैं। उसमें जो भी पॉइंट होता है आपके पास कोई भी, उसमें उसके दो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक आपके पास एक्स की वैल्यू होती है, एक वाई की वैल्यू होती है। कहीं भी पॉइंट ले लें आप, यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, यहाँ पॉइंट ले रहे हैं, जैसा कि लास्ट हम चैप्टर में चैप्टर नंबर 5 में डिस्कस कर चुके हैं कि आपके पास कोई भी पॉइंट होता है उसकी दो वैल्यूज होती हैं, एक एक्स की एक वाई की। सो इस तरह वेक्टर भी आप उसी तरह आप शो कर सकते हैं। कोई भी वेक्टर फॉर एग्जांपल ये इनिशियल पॉइंट इसका ओ है और ये पी है, और जो ओ पी वेक्टर है इसको आपने स्मॉल यू से रिप्रेजेंट किया है, तो ये जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स वाई, मींस एक्स की वैल्यू कुछ है इसकी कुछ एक्स की वैल्यू और साथ में इसकी वाई की वैल्यू कुछ है, तो इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आप इसको शो करते हैं। और इसको हम ऐसे अगर हमने दो वेक्टर्स अगर हमने ऐड करने हो और ये वेक्टर्स प्लेन के अंदर हो, एक वेक्टर आपके पास है एक्स वाई, मींस आप उसको इस तरह ब्रैकेट में लिखते हैं एक्स और y, मींस x की वैल्यू आपके पास x एक्सिस की वैल्यू और ये आपकी रिप्रेजेंट करती है y की वैल्यू। और अगर आपके पास एक और वेक्टर है v डैश, v उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x डैश, मींस डिफरेंट x को डिफरेंशिएट किया कि इसके कोऑर्डिनेट्स x डैश हैं और सेकंड y डैश है, मींस उससे डिफरेंट है, मतलब कि दो डिफरेंट वैल्यू है। तो इनको अगर आपने ऐड करना हो दोनों को u प्लस v करना हो तो क्या होता है, x के कोऑर्डिनेट्स x में ऐड होता है और y का कोऑर्डिनेट y में ऐड होता है। सो दिस रिजल्ट विल बी x प्लस x डैश और y प्लस वाई डैश। तो आप इस तरह इसको ऐड कर सकते हैं दो वेक्टर्स को, मतलब कि अगर एक और वेक्टर मौजूद है तो उसका x कंपोनेंट इसके x कंपोनेंट में ऐड होगा और उसका y कंपोनेंट उसके y कंपोनेंट में ऐड होगा, तो रिजल्टेंट आपके पास u प्लस v आएगा। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, अगर आपके पास एक वेक्टर है प्लेन के अंदर xy प्लेन के अंदर है u x y, उसको आपने किसी नंबर अल्फा से मल्टीप्लाई करना है और अल्फा कोई भी आपके पास रियल नंबर है, तो आपके पास क्या रिजल्ट आएगा, ये दोनों वैल्यू से रिप्रेजेंट होगा, अल्फा ऑफ एक्स अल्फा ऑफ वाई, मतलब कि उसके x कोऑर्डिनेट से भी मल्टीप्लाई होगा उसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि अल्फा इंटू एक्स वाई, तो अल्फा इंटू एक्स, अल्फा एक्स के साथ मल्टीप्लाई हुआ अल्फा वाई के साथ भी, और रिजल्टेंट आपके पास वो क्या हुआ, उस एक्स में भी चेंज आएगा और वाई में भी चेंज आएगा। सो दिस इज वे you can say addition and scalar multiplication। और definition क्या हो जाएगी, the set of all ordered pairs x y of real numbers together with the rules of addition and scalar multiplication is called set of vectors r scale। बल्कि वेक्टर्स r scale का मतलब है कि x y प्लेन के अंदर कब आप रिप्रेजेंट करेंगे, कब कहेंगे कि वेक्टर r प्लेन में है, कि अगर वो आपके पास
जो ऑर्डर पेयर्स तमाम जो आपके पास हो वो रियल नंबर्स हो टुगेदर विद द, और उस पर कौन से रूल अप्लाई हो सके, एडिशन का, ये जो भी हमने एक्सप्लेन किया अभी एडिशन का, कि वेक्टर्स को आप ऐड कर सकें उस एक्स वाई प्लेन के अंदर, और यू कैन स्केलर मल्टीप्लाई, मतलब कि किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकें। तो ये दोनों जब चीजें फुलफिल हो जाती हैं, कोई भी आपके पास वेक्टर जो प्लेन में होता है तो उसका हम कह सकते हैं कि वो वेक्टर जो है वो आर स्केयर में मौजूद है, वो एक्स वाई प्लेन के अंदर मौजूद है, वो कार्टेशियन प्लेन के अंदर मौजूद है। तो ये बेसिकली था वेक्टर्स इन प्लेन, मतलब प्लेन्स मींस कार्टेशियन प्लेन, एक्स वाई प्लेन जो आपके पास होता है। जी बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, इसमें भी आपके पास है कि अनदर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनदर नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग वेक्टर इन प्लेन, मतलब कि आप वेक्टर्स प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। कहता है वी इंट्रोड्यूस टू स्पेशल वेक्टर्स, हम यहाँ पे एक दो स्पेशल वेक्टर रिप्रेजेंट कर आपके पास इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। कहता है आई, हमारे पास ये जो एक आई है, स्मॉल आई, एक वेक्टर है, उसकी वैल्यू क्या है 10। 10 का मतलब क्या है, हमें पता है कि ये होता है एक्स वाई, बेसिकली एक्स वाई की वैल्यू होती है, तो मींस एक्स की वैल्यू 1 है और वाई की वैल्यू 0 है, तो ये कहाँ पे लाई करेगा, ये एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, मतलब कि आई जो वेक्टर है ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें इसका जो एक्स की वैल्यू तो है, वाई की वैल्यू नहीं है। ओके, सो इसका अगर मैग्नीट्यूड लें हम, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड क्या होता है कि हम एक्स और आई जो वाई की वैल्यू है उन दोनों का स्केयर करते हैं और उसका स्केयर करके ऐड करके स्केयर रूट लेते हैं। तो ये देखें एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो 1 का स्केयर, और वाई की वैल्यू 0, तो 0 का स्केयर, तो 1 का स्केयर 1, और स्केयर रूट इसका आंसर आ गया 1, मतलब कि ये आई का मैग्नीट्यूड लिया तो आपके पास क्या आ गया, आई का मैग्नीट्यूड, यू कैन कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ आई इज 1। सिमिलरली एक वेक्टर जे आपके पास है, वो 0 1 है। 0 1 का मतलब क्या है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 1, ये कहाँ पे आएगा, मींस ये आपके पास वाई एक्सिस पे आएगा। ओके, इसमें आपके पास क्या है, वाई पे एक्स 0 होता है और वाई की वैल्यू क्या होती है 1, और जब इसका भी आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, इसमें एक्स की वैल्यू क्या है 0 को 0 का स्केयर, और वाई की वैल्यू क्या है 1 1 का स्केयर, सो अगेन इसका आंसर क्या आएगा 1। तो इन दोनों का जब आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं तो दोनों का आंसर क्या आ रहा है 1 1। अभी हमने यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन की थी कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। सो बेसिकली दीज टू आर आई एंड जे जो हमने डिफाइन किए हैं, ये आपके पास क्या है, दो स्पेशल यूनिट वेक्टर्स हैं। और कौन कौन से यूनिट वेक्टर हैं, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, आई जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस आपके पास एक यूनिट वेक्टर है, और जे कौन सा है, दिस इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग y एक्सिस। ओके बेटा, बिकॉज दिस इज आई जहाँ पे है इसकी वैल्यू 1 है, x और y 0 है, और j जो है इसमें x 0 और जो y की वैल्यू 1 है। सो दीज आर द यूनिट वेक्टर बोथ हैव मैग्नीट्यूड 1, और i जो है वो x के अलोंग जो रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर, और जो j है वो अलोंग y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर। So I and J are called unit vector along x-axis and y-axis respectively using the definition of addition and scalar multiplication। जो हमने लास्ट अभी स्केलर और मल्टीप्लिकेशन और एडिशन डिफाइन की थी, तो इन वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, देखें बेटा, ये यू एक्स वाई हमारे पास कोई भी वेक्टर होता है वो एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है। ओके बेटा, हमने क्या किया, इसको ब्रेक कर लिया, मैंने क्या एक्स 0 और इसको वाई 0 लिख सकते हैं, क्योंकि बिकॉज अगर मैं एक्स को ब्रेक करना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट 0 प्लस वाई 0 डॉट वाई, मीन्स कि यहाँ पे सिर्फ ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये y की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं पहले में से x कॉमन ले लूँ, मींस x 0 जो है आपके पास है, इसमें से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या बन जाएगा, x कॉमन, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 0 में से x है ही तो बेसिकली 0 ही आ जाएगा, तो ये 0 1 आ जाएगा। इसी तरह जो मेरे पास 0 और 1 है, इसमें से 0 और y है, इसमें से अगर मैं y कॉमन लूँ तो ये क्या बनता है 0 और 1, और बाहर क्या रहेगा y, तो वो 0 में से y कॉमन नहीं आ सकता, तो यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ से y। अब ये 1 0 क्या है बेटा, ये 1 0 क्या है, इसकी वैल्यू अभी हमने डिफाइन किया कि 1 0 बेसिकली आई होता है, तो हम इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, और ये 0 1 क्या है, बेसिकली जे है, तो आपके पास इसकी जगह हम जे लिख सकते हैं। सो दिस बिकम्स अ वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे, मतलब कि अगर आपके पास एक वेक्टर हो एक्स वाई प्लेन को, उसको आप डोनेट करते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, वेयर आई एंड जे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब कि इन टर्म्स ऑफ अगर यूनिट वेक्टर्स आपने लिखना है कोई भी वेक्टर जो आपके पास प्लेन में मौजूद है, तो एक नया आपके पास एक मेथड आया है कि एक्स के साथ आप आई वेक्टर्स ऐड करते हैं, आई वेक्टर यूनिट वेक्टर प्लस, और y के साथ आप j वेक्टर यूनिट वेक्टर ऐड करते हैं, और अगर आपके पास एक और आपके पास z प्लेन है z, तो z के साथ हमारे पास यूनिट वेक्टर आएगा वो k आएगा। तो ये बेसिकली आपके पास यूनिट वेक्टर के साथ रिप्रेजेंटेशन है किसी भी वेक्टर की इन अ प्लेन एक्स वाई। तो हम बेसिकली ये नोटेशन अब नॉर्मली यूज करेंगे, एक्स आई प्लस वाई जे मीन्स आई जो है आपके पास एक यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, और j जो है वो अलोंग आपके पास यूनिट वेक्टर है अलोंग वाई एक्सिस। तो thus each vector x y can be uniquely represented by xi plus yj
मतलब कि इसको हम जब अगर ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस तरह एक्स वाई, तो हम तो इस तरह ही लिखेंगे, लेकिन ब्रैकेट के बगैर अगर हम इसको ब्रैकेट रिमूव करेंगे तो उसको इस तरह लिखेंगे एक्स आई, और जब साइन कोई भी नहीं होगा बीच में तो उसका मतलब प्लस वाई जे, तो हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे किसी भी वेक्टर को। अगर कॉमा, हम इसको कॉमा को रिमूव करेंगे तो प्लस का साइन, अगर वाई के साथ माइनस होगा तो फिर हम उसको माइनस में शो करेंगे। इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर आई एंड जे द सम यू और वी, अगर अब सम लेना है अब आपने, तो नॉर्मली हमने देखा था कि एक्स एक्स में ऐड हो रहा है, तो सिमिलरली आप एक्स को एक्स में ऐड करेंगे और वाई को वाई में ऐड करेंगे, वाई के कोऑर्डिनेट्स को वाई में, रिजल्ट आ गया एक्स प्लस वाई, ये ब्रैकेट में। लेकिन जब आपने ब्रैकेट के रिमूव करके इसको आंसर लिखना, तो बेसिकली ये क्या आंसर है, एक्स प्लस एक्स डैश, और जब आपने ब्रैकेट रिमूव की तो इसके साथ आंसर आ गया आई, आई वेक्टर आ गया, प्लस वाई डैश, और वाई के साथ क्या आपके पास वाई कंपोनेंट के साथ कौन सा वेक्टर आएगा, जे आपके पास यूनिट वेक्टर आएगा। सो दिस इज बेसिकली, जब आप इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपके पास ये रिजल्ट आएगा, और यही हमने रिजल्ट यूज करना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, आपको पता होना चाहिए कि आई वेक्टर और जे वेक्टर क्या चीज है, और ये यूनिट वेक्टर्स कैसे बने, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड 1 है। और आई किसके साथ लिखेंगे आप, एक्स कंपोनेंट के साथ लिखेंगे, और जे कहाँ लिखेंगे आप, जे को वाई कंपोनेंट के साथ लिखेंगे। और अगर आपके पास जी कंपोनेंट भी आ रहेगा तो फिर हम एक और यूनिट वेक्टर के को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, तो के उसके साथ आएगा। और जब इनकी एडिशन करेंगे तो एडिशन सिमिलरली एक्स में एक्स ऐड होता है, वाई में वाई, लेकिन जब उसको आप ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो बेसिकली एक्स के साथ आई आएगा और वाई के साथ जे आएगा, और कॉमा की साथ आप कॉमा की जगह प्लस आएगा। तो दिस इज द नोटेशन ऑफ अ वेक्टर इन टर्म्स ऑफ अ स्पेशल वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स आई एंड जे। जी बेटा, अब हम देखने जा रहे हैं कि जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनको हम किस तरह यूज़ करना है। और एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 आज हमारा टारगेट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें बेटा, इसमें क्या करना है आपने, इसमें आपने एक वेक्टर पी क्यू मालूम करना है और पॉइंट्स दिए हुए हैं, पी इनिशियल पॉइंट दिया और क्यू आपके पास टर्मिनल पॉइंट है। इसका सेकंड में पी इनिशियल पॉइंट दिया है, क्यू टर्मिनल पॉइंट है। इन दोनों को यूज़ करते हुए आपने बेसिकली क्या है, वेक्टर पी क्यू फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ एक्स आई और वाई जे, मतलब कि जो भी हमने डिस्कस किया है कि आपने इस फॉर्म में आंसर देना है अपना। ओके, तो ये हमारे पास टारगेट फर्स्ट है। सेकंड क्या है, हमने मैग्नीट्यूड मालूम करना है, वेक्टर दिया हुआ है u इज इक्वल टू 2i माइनस 7j, और u इज इक्वल टू i प्लस j, और u इज इक्वल टू ब्रैकेट में दिया हुआ 3 कॉमा माइनस 4। और थर्ड क्या है कि u आपके पास वेक्टर दिया हुआ है, v वेक्टर दिया हुआ है और w वेक्टर दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है, फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स u प्लस v, u में v ऐड करना है और उसके साथ क्या करना है हमने माइनस w करना है। एंड सेकंड क्या करना है, 2u माइनस 3v प्लस 4w, और हाफ यू प्लस हाफ वी प्लस हाफ डब्ल्यू। तो ये बेसिकली हमने 3 क्वेश्चंस आज हमारा टारगेट है बेटा। तो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम वेक्टर्स फाइंड करते हैं। ओके, बेसिकली क्या क्वेश्चन है, पी और क्यू 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं आपको। तो हमें पता है कि पी क्यू अगर आप इसको ड्रॉ करें, बेसिकली जिस तरह हमारे पास एक्स वाई प्लेन पे आप ड्रॉ करते हैं, लेट करें एक पॉइंट पी टू थ्री है, तो लेट ये हमने एक मैंने आपको शो किया, लेट करें इस तरह अगर आपके पास ड्रॉ करें कि एक पी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट्स 2 3 है, और एक क्यू जो है आपके पास पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स 2 6 माइनस 2 है। तो बेसिकली ये वेक्टर आपने पी क्यू मालूम करना है। बेसिकली क्या, इन दोनों का बेसिकली कि कितनी आपके पास ये जो है पी क्यू की लेंथ बनती है, किस तरह मालूम करेंगे। तो पी क्यू वेक्टर यू कैन कैलकुलेट कि आपके पास फाइनल पॉइंट में से आप इनिशियल पॉइंट माइनस करेंगे, मतलब कि जो इसके कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें से आप क्या करेंगे, इनिशियल के कोऑर्डिनेट्स माइनस करेंगे। सो बेसिकली कोऑर्डिनेट्स कैसे माइनस करते हैं आप, कि जो x पहली वैल्यू होती है वो x को रिप्रेजेंट कर रही होती है, यहाँ पे 2 रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे 6 रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब है फाइनल में से आपने पहले मालूम करना, तो ये लिखा आपने फाइनल और माइनस बेसिकली आप ये जो फाइनल आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें से आप ये इनिशियल मालूम करेंगे, इनिशियल वाले माइनस करने हैं आपने। ये देखें, ये 6 में से क्या माइनस होगा, ये 2 माइनस होगा, और माइनस 2 में से क्या माइनस करेंगे, माइनस 3 माइनस करेंगे। ओके, तो 6 माइनस 2, और साथ में आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कि आई रिप्रेजेंट कर रहा है कि बेसिकली ये यूनिट वेक्टर है अलोंग एक्स एक्सिस, क्योंकि आप पहली वैल्यू एक्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इस तरह माइनस 2 माइनस 3, तो आपके पास साथ जे आ गया, क्योंकि हमने आंसर एक्स आई और वाई जे की फॉर्म में देना है, इसलिए हमने यूनिट वेक्टर भी साथ में ऐड कर दिए हैं। तो 6 माइनस 2 क्या आ गया, 4i, और माइनस माइनस माइनस, तो माइनस माइनस प्लस माइनस 5 माइनस 5 देखो, ये आपके पास पी क्यू की बेसिकली वेक्टर आ गया। ये पी क्यू जो वेक्टर है वो बेसिकली क्या है आपके पास, वो वेक्टर है आपके पास -4i, मतलब कि डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस 4, और -5 डिस्टेंस अलोंग वाई इज -5, और जे और आई रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो इस तरह आपने ये पी क्यू मालूम कर लिया। अभी सिमिलरली पी क्यू यहाँ भी मालूम करना है। अगेन इसका -1 में से क्या माइनस करेंगे आप, -0 करेंगे, तो इसका आंसर -1 ही आ गया। जो -1 के साथ क्या आ जाएगा आपके पास, साथ आई आ जाएगा -1 के साथ, और -1 के साथ आई अगर आपने 1 नहीं लिखना तो इट्स ओके, क्योंकि अंडरस्टूड है कि y का जो कोफिशिएंट है वो 1 है।
इस तरह -6 -5, तो ये क्या आ गया बस -11 आ गया। तो -11 आ गया और साथ में क्या आ गया j, तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास ये एक पूरा वेक्टर है PQ जब आपने इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स को सॉल्व किया। सो इन दिस वे यू कैन कैलकुलेट एनी वेक्टर जब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन हो। तो ये हमारे पास वेक्टर्स कैलकुलेट करने का तरीका था। अब बेटा हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड करना है कैलकुलेट। दिस इज अ वेक्टर u, आपके पास वेक्टर है और आपने क्या कैलकुलेट करना है इसका मैग्नीट्यूड 2i - 7j। अब हमने क्या डिस्कस किया था, उसका फार्मूला क्या था कि मैग्नीट्यूड आपने जो कैलकुलेट करते हैं बेसिकली जो भी वेक्टर होता है उसके आप मॉडुलस का साइन लगाते हैं और स्क्वायर रूट होता है आपके पास और x और y की वैल्यू का स्क्वायर। अब यहाँ पे x क्या है आपके पास 2, तो ये आपके पास 2 का स्क्वायर और सेंटर में प्लस आता है और y के आपके पास -7 और -7 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4, -7 का स्क्वायर 49, 2 + 49 53 और स्क्वायर रूट। ये फर्दर सॉल्व नहीं होता, तो आपके पास ये मैग्नीट्यूड है इस गिवन वेक्टर का। आपने क्या किया, जो उसका x की वैल्यू थी उसका स्केल ले लिया और जो y की वैल्यू थी उसका स्केल ले लिया, उन दोनों को स्केल को सम किया और उसका स्क्वायर रूट लिया। अगर स्क्वायर रूट होता होगा तो आप ले लेंगे, नहीं तो आपके पास स्क्वायर रूट में अगर सॉल्व नहीं हो रहा तो ये आपके पास ये आंसर है। दिस इज अ पॉजिटिव आंसर, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड है इस गिवन वेक्टर का। सिमिलरली जो नेक्स्ट 2 हमारे पास पार्ट्स हैं इसके, उसका भी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है हमने। जी देख सकते हैं आप, ये आपके पास अब ये एक वेक्टर है ui + j। अब i और j आपके पास इन टर्म्स ऑफ ये दोनों पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, तो i का क्या आपके पास कोफिशिएंट है 1 और j का भी कोफिशिएंट क्या है 1, तो इसका मतलब है 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपके पास का मैग्नीट्यूड आ गया दिस वेक्टर का। और कैसे लिखते हैं मैग्नीट्यूड को, आप जो भी वेक्टर होता है आपके पास उसके गिर्द आप क्या करते हैं मॉडुलस का साइन लगाते हैं, ये 2 बार्स लगाते हैं, इसका मतलब है आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। अब थर्ड में देखिए आपके पास, थर्ड में आपको ओपन फॉर्म में नहीं दिया, क्लोज फॉर्म के अंदर दिया हुआ उसको, ये 3 और ये -4 दिया हुआ। ओके, तो पहले इसको कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में लिख लें। वो कैसे लिखेंगे आप, ये बेसिकली 3 है तो 3 के साथ कौन सा कंपोनेंट आता है आपके पास अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, कौन सा यूनिट वेक्टर आता है i, तो ये 3i आ गया और प्लस का साइन आता है कॉमे की जगह और साथ में y की वैल्यू क्या माइनस, तो माइनस ब्रैकेट में -4 और साथ में क्या आता है y कंपोनेंट के साथ j यूनिट वेक्टर आता है। तो बेसिकली ये क्या आपके पास 3i - 4j आपके पास ये गिवन वेक्टर है। नाउ आपने इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। सो 3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और -4 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 16, 9 + 16 25, तो 25 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 5 और ±5 होता है, लेकिन आपको पता है कि मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है, सो यू विल कैलकुलेट द पॉजिटिव वैल्यू, सो 5 आपके पास पॉजिटिव आंसर आएगा। सो दिस इज योर मैग्नीट्यूड ऑफ द गिवन वेक्टर्स। ये आई थिंक आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, क्लियर हो गया होगा कैसे आपने इसको ओपन फॉर्म में लिखा है। कॉमे की जगह प्लस आता है और बिकॉज सेकंड y की वैल्यू माइनस है तो माइनस आएगा, तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा और y के साथ j आपके पास यूनिट वेक्टर आता है। सो ये था आपके पास के मॉडुलस कैसे या आपके पास मैग्नीट्यूड कैसे कैलकुलेट करना है। अब हम देख रहे हैं थर्ड में कि वेक्टर्स को कैसे ऐड करना है और किस तरह स्केलर मल्टीपल करके उसको सॉल्व करना है। आपके पास ये वेक्टर है u 2i - 7j, v आपके पास है 1i - 6j और w है -i + j। ये 3 वेक्टर्स हैं और ये आपके पास xy प्लेन में मौजूद है। आपने क्या करना है u + v और -w। अब जब u + v करेंगे बेटा, देखें हमने सिंपली u लिख लिया और ये प्लस का साइन लिखा है यहाँ पे, ये v लिख लिया, v वेक्टर लिख लिया और माइनस का साइन और ये। अब आप इसको सॉल्व कर लें। अब हमें पता है कि जो x कंपोनेंट है x कंपोनेंट के साथ सॉल्व होगा और y मतलब कि i वाला i के साथ सॉल्व होगा, j वाला j के साथ। पहले ब्रैकेट ओपन कर लें बेटा। अगर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे देखें बेटा, ये आ जाएगा +i और -6j, ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस और -j। ओके, जब आप 2i + i क्या आ जाएगा 3i, 3i + i क्या आ जाएगा 4i, मीन्स ये 4i आ गया जब i वाले कंपोनेंट को सॉल्व किया। j -7j और -6j कितना हो गया बेटा -13j, -13j और -j, तो ये आपके पास -14j। तो इस तरह बेसिकली आपने वेक्टर्स, गिवन वेक्टर्स थे, उनको ऐड और सब्ट्रैक्ट किया बाय एडिंग देयर कंपोनेंट्स, जो आपके पास x कंपोनेंट और y कंपोनेंट को सेपरेटली आपने इसको सॉल्व करके यहाँ से लिख लिया। सेकंड में क्या आपके पास 2u - 3v और +4w। अब आपके पास स्केलर मल्टीपल है, ये जो वेक्टर्स हैं आपके पास u v w यही आपने यूज करने हैं, बट इन द सेकंड पार्ट आपने इस u को 2 से पहले मल्टीप्लाई करना है और जो v को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है और जो w है उसको 4 से मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या करना है आपने 2u जो आपका आंसर आएगा -3v करना और +4w करना है। ये आपने सिमिलरली क्या किया, आपने ये लिखा 2 पहले और साथ में u वेक्टर लिख लिया
माइनस का साइन 3 लिखा और साथ में आपने v वेक्टर लिखा, प्लस 4 का साइन, यहाँ पे 4 मिसिंग है, प्लस 4 और आपके पास क्या w आ गया माइनस आई माइनस जे। ओके बेटा, सो इनको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास जब मल्टीप्लाई करने के बाद जब सॉल्व होगा उसके बाद आपने आई वाले कंपोनेंट्स को आई में ऐड कर देना है और जे वाले को जे में, तो इस तरह आपके पास सिंप्लीफाई होकर आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, द लास्ट वन की आपके पास पार्ट है 1/2u। अब आपके पास जो u वेक्टर है उसको आपने क्या करना है 1/2 से मल्टीप्लाई करना है उसके हर कंपोनेंट को, मतलब कि जब आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका i पार्ट भी मल्टीप्लाई होगा, j पार्ट भी मल्टीप्लाई होगा। इस तरह 1/2v, आपने v को भी 1/2 से मल्टीप्लाई करना है उसके दोनों कंपोनेंट्स को, और 1/2 w तो आपने उसको भी w से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे उसने सिंप्लीफाई किया हुआ कि तीनों में 1/2 था तो 1/2 कॉमन ले लिया और u प्लस v प्लस w पहले फाइंड कर लिया। तो इन तीनों वेक्टर्स को पहले ऐड किया और इन तीनों को जब ऐड करके जो आंसर आया उसके बाद लास्ट में उसने 1/2 से दोनों कंपोनेंट्स को डिवाइड कर दिया, तो उसके बाद आपके पास i माइनस 6j ये आंसर आया। इसमें लास्ट पार्ट में बेटा ये 1/2 तीनों में कॉमन है तो हमने तीनों में कॉमन ले लिया, तो सेंटर में क्या चीज रह गई u प्लस v प्लस w। तो तीनों वेक्टर्स को आप ऐड कर दें u प्लस v प्लस w को, कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। 2i में i ऐड किया क्या बन गया 3i, 3i में से i माइनस किया तो ये आ गया आपके पास 2i, इसका आंसर आ गया जब तीनों को ऐड कर रहे हैं। और j वाले पार्ट को माइनस 6j और माइनस 13j, 13j तो माइनस 12j आपके पास ये आ गया। ओके बेटा, जब इनको आपने ऐड कर दी तीनों वेक्टर्स को, और बाहर आपके पास क्या स्केलर पड़ा हुआ 1/2, इसका मतलब है 1/2 इससे भी डिवाइड होगा और इससे भी। जब इससे डिवाइड होगा तो 2 से कैंसिल, आपके पास आ गया i, जब इससे डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 6j, तो i माइनस 6j आपके पास फाइनल आंसर है जब इसको आपने सॉल्व किया। सो इन दिस वे आप क्या करते हैं, गिवन वेक्टर्स को सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय एडिंग देयर कंपोनेंट्स। जो उसके i और j कंपोनेंट्स हैं उनको आप सेपरेटली ऐड करके सॉल्व करते हैं बेटा। जी बेटा, प्रैक्टिस वर्क ये एग्जांपल नंबर आपके पास 1, 2 एंड 3 है, पेज नंबर 331 पे। आपने उसको भी अच्छी तरह देखना है और जो आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको भी, अगर कोई डिफिकल्टी होगी तो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह दोबारा डिस्कस कर लेंगे, लेकिन आपने एग्जांपल्स लाजमी एक दफ़ा देखनी है, गो थ्रू करनी है एग्जांपल्स को। तो हम आज वीडियो देखते हैं वेक्टर्स और उसकी एप्लीकेशन के बारे में कि वेक्टर्स क्या है। इसमें वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया गया है वेक्टर्स के बारे में, तो आप वीडियो देखें बेटा। Physicists, air traffic controllers, and video game creators all have at least one thing in common: vectors. What exactly are they, and why do they matter? To answer, we first need to understand scalars. A scalar is a quantity with magnitude. It tells us how much of something there is. The distance between you and a bench and the volume and temperature of the beverage in your cup are all described by scalars. Vector quantities also have a magnitude, plus an extra piece of information: direction. To navigate to your bench, you need to know how far away it is and in what direction, not just the distance, but the displacement. What makes vectors special and useful in all sorts of fields is that they don't change based on perspective, but remain invariant to the coordinate system. What does that mean? Let's say you and a friend are moving your tent. You stand on opposite sides, so you're facing in opposite directions. Your friend moves 2 steps to the right and 3 steps forward, while you move 2 steps to the left and 3 steps back. But even though it seems like you're moving differently, you both end up moving the same distance in the same direction, following the same vector. No matter which way you face or what coordinate system you place over the campground, the vector doesn't change. Let's use the familiar Cartesian coordinate system with its x and y axes. We call these two directions our coordinate basis because they're used to describe everything we graph. Let's say the tent starts at the origin and ends up over here at point B. The straight arrow connecting the 2 points is the vector from the origin to B. When your friend thinks about where he has to move, it can be written mathematically as 2x plus 3y, or like this, which is called an array. Since you're facing the other way, your coordinate basis points in opposite directions, which we can call x prime and y prime. And your movement can be written like this, or with this array. If we look at the 2 arrays, they're clearly not the same. But an array alone doesn't completely describe a vector. Each needs a basis to give it context, and when we properly assign them, we see that they are in fact describing the same vector.
You can think of elements in the array as individual letters. Just as a sequence of letters only becomes a word in the context of a particular language, an array acquires meaning as a vector when assigned a coordinate basis. And just as different words in two languages can convey the same idea, different representations from two bases can describe the same vector. The vector is the essence of what's being communicated, regardless of the language used to describe it. It turns out that scalars also share this coordinate invariance property. In fact, all quantities with this property are members of a group called tensors. Various types of tensors contain different amounts of information. Does that mean there's something that can convey more information than vectors? Absolutely. Say you're designing a video game and you want to realistically model how water behaves. Even if you have forces acting in the same direction with the same magnitude, depending on how they're oriented, you might see waves or whirls. When force, a vector, is combined with another vector that provides orientation, we have the physical quantity called stress, which is an example of a second-order tensor. These tensors are also used outside of video games for all sorts of purposes, including scientific simulations, car designs, and brain imaging. Scalars, vectors, and the tensor family present us with a relatively simple way of making sense of complex ideas and interactions. And as such, they're a prime example of the elegance, beauty, and fundamental usefulness of mathematics. जी बेटा, ये आज के हमारे लर्निंग आउटकम्स थे। आपने देखा कि स्केलर्स और वेक्टर क्वांटिटीज के बिना डिफरेंशिएट किया आपने, यूनिट वेक्टर्स और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को डिफाइन किया आपने, और साथ में आपने देखा कि नेगेटिव ऑफ वेक्टर क्या होता है। आई होप कि आज जो डिस्कस की चीज़ें हैं वो आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपको कोई क्यूरीज हैं तो आप लाजिम से शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफिज़।